Hello students, this is KK Bhatt here. Dear students, today I am going to teach you a history. You have read this chapter here in the class, but now today I am here with revisional chapter. The topic of your revisional chapter is key changes over a thousand years. Dear students, you know well that history just tells us to know about the past. There are many things who help us to understand the cultures and other thing of the past. You can, if you can go Delhi, Agra, or other any ancient city, where if you can see old houses that is made on medieval history. At that time, you can see there are many things has been written over the wall, yeah, on the wall, on the walls. You can also see there are many sculptures is also seen in the particular building. Through that we understand about our past. Today we can see here that if there is a lot of ancient things, the archaeology department just came there and started to search the history of the past. How can we know the history? The sources which are around us that help us to understand the history. In this sequence, now see here, key change over a thousands year. Historians use different type of source to learn about the past depending on the period of their study and the nature of their investigation. सोर्स एज ए क्वाइंस, अगर आप क्वाइंस की बात करते हैं तो क्वाइंस भी हमें स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं उस ज़माने की जो रहन सहन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्वाइंस के जो फिगर होते हैं उसके द्वारा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इंस्क्रिप्शन, देयर आर मेनी स्क्रिप्ट जो लेखनी जो लेख लिखे जाते हैं पुराने पत्थरों पर लिखे गए हैं जो अरबी भाषा में लिखे गए हैं, तो उसके माध्यम से भी हमको हिस्ट्री समझने का मौका मिलता है. पेंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. We can just if you get a chance to go Khajuraho, there you can see a different type of architect, different type of this, painting, so that you can understand the religious motto as well as the mental status of the societies in the about the past. Architectures remain and textual records serve as a link to the past. Medieval Indian history has left behind a rich legacy of archaeological and literary sources will help us reconstruct the history of the period. And these are the main objects so that we can understand the history about the past. Now we are going to read more about archaeological sources. Archaeological sources क्या क्या होते हैं? Archaeology is the study of history. You know well that. Through the material remain of human life, archaeology sources may include monuments, painting, sculptures, inscription, and coin. These are the main things by which things the archaeological department जो होता है that will be going to search out the living structure of the people on those days, their religious condition, they are loving of music and so on meanings. Now see here, the first is monument and building. In this particular heading we understand, we try to learn how is monuments and building helpful. See here, historical monuments and buildings such as places, temple, fort, mosque, tomb, clock tower, etc. help to reconstruct the past in the many ways.
If you want to know about past, we have to go go to observe those houses who are the past. अगर आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ तरह तरह की डिज़ाइनें बनी रहती हैं, कुछ स्क्रिप्शन लिखे रहते हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिखी रहती हैं, और जो उन समय के राजाओं के बारे में या वहाँ के लोगों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है। कैसे लोग यात्रा करते थे, कैसे लोग चीज़ों को संभालते थे, पारिवारिक व्यवस्था क्या थी, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है थ्रू द हिस्ट्री। टू बिगिन विथ दिस बिल्डिंग रिवेल मीन्स ओपन द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियड। मतलब आप समझ सकते हो कि कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा रहा, सांस्कृतिक प्रभाव कैसा रहा, रिलीजियस प्रभाव कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हमको उससे मिल जाती हैं। द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इंक्लूड द हुमायूं टॉम्ब। आप हुमायूं टॉम्ब जाएंगे, गुम्बद जो उसको देखेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें, कुतुब मीनार, इट्स वेरी फेमस फॉर यू, and there are many students have seen Qutub Minars. So if you see Qutub Minars, there you can see big domes and so many things which tell us the history of our ancient time. Qutub Minar mosques such as the Qaur-ul-Islam and Jama Masjid, Red Fort from Delhi, Taj Mahal from Agra, Hosla temples, etc. They provide invaluable information regarding the architectural skill of worker. मतलब आप समझ सकते हो, उस बिल्डिंग को देखने के बाद आप समझ सकते हो कि जो हमारे वर्कर थे, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, कितनी स्ट्रांग थी। इन दोज डेज देयर इज नो यूज ऑफ बार और छड़, सीमेंट, पीपल जस्ट यूज स्टोन्स एंड लाइम to make such type of building, and those building just remain today with the in those condition who made 6 or 700 years ago. तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बताती है कि उसमें भी हमारा जो साइंस था और जो टेक्नोलॉजी थी, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, जो टेक्नोलॉजी थी हमारी कितनी स्ट्रांग थी। ताजमहल को आप देख करके सरप्राइज हो जाओगे, उसको अजूबा भी कहा जाता है, 7 वंडर्स में भी आता है, स्ट्रेंस बिल्डिंग के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उस समय के जो आर्किटेक्चर थे, जो भवन का निर्माण करते थे, आजकल के किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, आजकल के किसी आर्किटेक्टर से कम नहीं थे। दे हैव डीप नॉलेज एंड क्रिएट्स दोज बिल्डिंग विच कांट एबल टू बी रीबिल्ड। ऐसे बिल्डिंग दोबारा बनाई नहीं जा सकती। अब आगे आप देखेंगे, they provide general information regarding the architectural skill of worker, material used to construct these monuments, and the mode of transportation in use. Beside the culture and religious belief prevailed during the period under the study, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंडर पढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा इंस्क्रिप्शन पे। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है, चीज़ें जो प्राचीन काल में लिखी होती हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग इनग्रेव ऑन सॉलिड सरफेस इंक्लूडिंग रॉक, चट्टान पे आप लिखते हो, मेटल्स पे लिखते हो, पिलर्स पे लिखते हो, स्टोन पे लिखते हो, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स रिटन इन वेरियस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दिस इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड रॉयल प्रोक्लेमेशंस, रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रक्शन एंड गिफ्ट टू टेम्पल पीपल और विलेज। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको इसके द्वारा माध्यम होती है। मैनी ऑफ दिस अवेलेबल इवन टुडे आर attributed to the Rajput Chola rulers. Beside there are several inscriptions of the walls of the Taj Mahal and Red Fort and other places walked. All these inscriptions usually tell us about the social and economic condition of the people. ये जो स्क्रिप्ट आप देखते हैं, इंस्क्रिप्शन जो देखते हैं, स्क्रिप्ट जो देखते हैं, ये सब हमें हमारे पास्ट के सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है, रिलीजियस बिलीफ को बताता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं हिस्ट्री को अच्छी तरह से। इसके बाद क्वाइन इज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो सिक्के होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहले गोल्ड के सिक्के बनते थे, फिर तांबे के सिक्के बनते थे, फिर कांच के। इस तरह से टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। आप सोचो जब सोने के सिक्के बनते थे तो अगर आदमी के पास आज एक सोने का सिक्का हो तो अपने आप को नहीं समझेगा, और उस समय लोग सैकड़ों सोने के सिक्के मोहरे रखते थे। यानी आप समझ सकते हो कितना वेल्दी, कितनी प्रॉस्परस कल्चर हमारा था, कितनी प्रॉस्परस हमारी संस्कृति थी।
Coins give us invaluable information about the polity एंड इकोनॉमिक ऑफ द पीरियड, यानी कॉइन से हमको समय के इकोनॉमिक के बारे में पता चलती है। द राइटिंग ऑन द कॉइन्स जनरली कन्वे द नेम्स, डेट ऑफ इशू, टाइटल एंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स एंड ओकेजनली इवन देयर डायनेस्टिक इवेंट। अब देखोगे सिक्कों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो डेट होता है, ईयर्स होते हैं, उनके जो राजा उनकी फ़ोटो होती है, उसके द्वारा हम उस डायनेस्टी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। Quest to light and religion, economic conditions, trade etc. The compositions of the metals and alloy used in the coins tell us about the scientific advancement attained during the corresponding period. Moreover, the distant places where the coins are excavated give an idea even the extent of the empire. The Sultanate of Delhi, the Mughal emperors, एंड चोला एंड अदर रीजनल रूलर इशूड मैनी क्वाइंस। तो ऐसे जो शासक थे जिन्होंने क्वाइंस का निर्माण किया, जो क्वाइंस को बताया। अब हम आते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री थ्रू पेंटिंग एंड स्कल्पचर। पेंटिंग के द्वारा कैसे हम समझते हैं उसको। पेंटिंग एंड स्कल्पचर आल्सो गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिडिवल हिस्ट्री। ये भी हमें बताते हैं मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। द पेंटिंग रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ रिलीजियस, फॉरेस्ट लाइफ, कोर्ट सीन्स, mythological stories, lifestyle of peoples and food। मतलब यू कैन से पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं कि उस समय आदमी कैसे रहता था, क्या खाता था, उसके खाने का तरीका क्या था, उनका लिविंग स्टेटस कैसा था, कैसे वो हैप्पीली यूनाइट होकर के रहते थे। बहुत सारी विसंगतियाँ जो थी उसको भी हमें जानकारी मिलती है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ मिनिचर्स पेंटिंग आल्सो इन्वॉल्व पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड। द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ द नटराज, ये नटराज डांसिंग शिव, जिसमें शिव भगवान को डांसते हुए दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंटिंग ऑफ द स्कल्पचर ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड के बारे में बताता है। द स्कल्पचर्स वेयर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, वुड और स्टोन्स एंड डिपिक्टेड फिगर ऑफ गॉड्स, गॉडेस, क्वीन एंड किंग। यानी जो बनते थे पेंटिंग, जो बनते थे स्कल्पचर, ठीक है, उसमें लकड़ी के बनते थे, स्टोन के बनते थे। तो उसमें हमें देवी देवताओं के पिक्चर मिलते थे, राजाओं के पिक्चर, रानियों के पिक्चर। इस तरह से हमें उस समय के राजाओं के बारे में, उस समय के देवी देवताओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब लिटरेसी और लिटरेरी सोर्सेज में देखो क्या है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, क्रॉनिकल है, तो ये सब हमारे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। मच ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द medieval period of Indian history comes from a plethora of written sources. These include both religious and non-religious sources, all in the form of biography and autobiography. You know what is important? Biography and autobiography. Biography means if you write a story about someone, आप किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, वो आदमी खुद न लिख करके कोई और व्यक्ति लिखता है, तो बायोग्राफी कहलाती है। ऑटोबायोग्राफी जो व्यक्ति खुद अपना लिखता है, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देता है तो कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। मतलब जो लेखनी हमको मिलती है लोगों की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी मिलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने निकल के आती हैं कि कैसे लोग, उस समय के लोग कैसे हुआ करते थे, या वो क्या चीज़ें लिखते थे। तो लिटरेरी भी बहुत सारे उनके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। एट टाइम कॉल्ड नेम्स इन पर्सियन and historical account by pilgrims, traders and royal ambassadors. The literary source usually categorized into indigenous and foreign writing convert subject to the religious, economic, politics, culture, etc. A variety of languages such as Persian, Sanskrit, Arabic, Urdu and many other languages, regional language were used to produce the writing. मतलब literary devices are in different languages. Some are in Greek, some are in German, some are in Sanskrit, some are Persian, some are Urdu, Arabic, and so on. Many. It is interesting to note that paper was still not in the use in the Indian subcontinent during the early medieval period. आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस समय जो मेडिवल काल था पेपर यूज नहीं होते थे। पीपल डू नॉट यूज पेपर। पाम लीव्स, बार्क ऑफ बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल स्किन वर यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर राइटिंग। तो उस समय लोग क्या यूज़ करते थे, आप समझ सकते हो, पाम लीव्स। दूसरा क्या है, जो
पेड़ होते हैं उसके, जो उसको चीर करके चिकना बना करके उस पर लिखते थे। एनिमल स्किन को ड्राई करके लिखते थे। वेयर यूज एज मटेरियल फॉर राइटिंग। इट वॉज ओनली इन द लेट मेडिवल पीरियड दैट पेपर बिकम द मेन राइटिंग मटेरियल। लिटरेरी सोर्सेज और मेडिवल हिस्ट्री कैन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। उस कैटेगरीज के बारे में वी आर रीडिंग टुमारो। ठीक है, हम कल आपके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। आई होप यू विल लाइक, share in your group too, and subscribe also. Thanks again to watch my